Good morning, all of you. So, here we will start with chapter 6 NCRT of class 6, that is of political science, and the name of this lesson is rural administration. So, first of all, we will get to know what's the meaning of rural administration. Okay, so there are more than 6 lakh villages in India. Taking care of their needs for water, electricity, road connections is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts to need to be dealt with. So, a large machinery is in to deal with all this. That is, in this chapter, we will look at the work of two administrative officers in some detail. Okay, so let us start. It is given here a quarrel in the village. Okay, it's the among two villagers. Let us start. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. Okay, so a new word came here, that is bund. So let us know what is this. A small boundary which separates two lands is called a bund. Okay, so in this story, it's a demonstration given here, and let me explain the whole story in short form. Okay, so it's a story about two farmer, Mohan and Raghu. Okay, so Mohan is a farmer, or he has his family owns a small agricultural field, जो कि उनके पास एक छोटा सा एग्रीकल्चरल फील्ड है और ये बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं. उनके खेत के बगल में, उनके लैंड के बगल में एक और लैंड है जो कि रघु का लैंड है. ठीक है, और इन दोनों लैंड को सेपरेट किया गया एक स्मॉल बाउंड्री से, जो कि जिसको बंड कहते हैं. ओके, सो वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैज शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. So there are so many quarrels among people related to land. Okay, so Mohan noticed that Raghu has shifted his land, bund of his land by some feet. मीन्स कुछ अपनी बंड को कुछ खसका के, कुछ फीट खसका के, जो रघु है वो अपने लैंड की एरिया को बढ़ाना चाहता है. ठीक है, मोहन की एरिया में से कम करके अपनी एरिया को बढ़ाना चाहता है. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो फ्राइटेंड. Raghu's family owned many fields, and besides, his uncle was also the sarpanch of the village. But even so, he plucked up courage and went to Raghu's house. Mohan was so frustrated. Okay, he was frightened and angry too. तो रघु ही थॉट कि रघु के पास खुद के इतने लैंड्स हैं, इवन उसके अंकल जो हैं, उसके चाचा जो हैं, वो खुद गांव के सरपंच हैं, फिर भी उसने ऐसा किया. लेकिन मोहन अपनी कंप्लेन लेके रघु के घर जाता है. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating them up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. तो जब वहाँ पे रघु के घर जब मोहन जाता है, तो रघु ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि उसने अपनी लैंड को शिफ्ट किया है. तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है. आर्ग्यूमेंट के बाद जो रघु के लोग होते हैं वो मोहन को पीटने लगते हैं, और फिर वहाँ कॉमोशन, बहुत शोरगुल सुन के लोग, वहाँ के पड़ोसी सब वहाँ पे रष्ट हो जाते हैं. भीड़ इकट्ठा हो जाती है जहाँ पे मोहन की पिटाई हुई थी, और फिर वो मोहन को उठा के ले जाते हैं. ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. ओके, एंड ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स. उसको बहुत बुरी तरह चोट लग गई थी, तो उसको दवा पट्टी लगाई गई एक नेबर्स के द्वारा. हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल ऑफिस वेयर local police station and file a report. Others were doubtful of
if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. तो जब ये होता है कि कंप्लेन करने गया होता है मोहन रघु के घर में और रघु से ही रघु के लोग उसको पीट देते हैं, तो कुछ लोग उसको आइडिया देते हैं मोहन को कि ही शुड फाइल कंप्लेन अगेंस्ट हिम इन पुलिस स्टेशन. बट सम पीपल्स थॉट कि ये सही होगा, क्योंकि सुनने में आया है कि रघु की फैमिली ने पहले ही कंप्लेन कर रखा है पुलिस स्टेशन में, और अगर हम कंप्लेन करने जाते हैं बाद में तो कहीं ऐसा ना हो कि इट वुड बिकम द वेस्टेज ऑफ मनी. ओके, सो आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विथ सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट. तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये रिजल्ट आता है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन उन विक्टिम के साथ जाएंगे जिन्होंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा था. ठीक है, सो now we will discuss what is the area of police station. Okay, so on the way the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town. तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि लोकल पुलिस स्टेशन से जाने की बजाय हम टाउन के पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जाते हैं, थोड़े पैसे और लगा के हमको सिटी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए. It was not a question of money. We can register the case only if the police station, because our village comes in its area of work, explained Mohan. But Mohan said कि ये पैसे का बात नहीं है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन हमारे एरिया में आता है, हमारे गांव के एरिया में आता है, तो वी शुड गो देयर. हमें अपनी कंप्लेन फाइल करने के लिए हमें अपनी इसी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए. ठीक है, सो एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया डेट कम्स इन अंडर इट्स कंट्रोल. ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस of inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate, or to take action of the cases within its area. So if we go to the conclusion of this paragraph, we got के every police station has its area, और उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो उस पुलिस स्टेशन में अपनी केस को फाइल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर पुलिस जो है वो आगे उनकी इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और ये केस जो है वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, लाइक एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट, एट्सेट्रा. ओके, सो अब केस फाइलिंग के बाद क्या होता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन. ओके, द वर्क what the police station does. Okay, so when they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO. So there is a word SHO, and the full form of this is station house officer, and told him what had happened. तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पर्सन इंचार्ज जो कि जिसको हम SHO कहते हैं उनसे जाके मोहन वो सारी बातें बताता है जो कि हुई थी. He also said it that he want to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. ठीक है, तो मोहन said that कि मुझे अपनी कंप्लेन फाइल करनी है और I would like to give this complaint in written form, but SHO denied him. ओके, एंड ही ब्रश्ड हिम, वो उसको डांट के मतलब जाने को कहता है. वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं राइटिंग फॉर्म में कंप्लेन को फाइल करने के लिए अपने टाइम वेस्ट करूँगा. ठीक है, और फिर मोहन अपनी इंजरीज, अपनी चोट भी उनको दिखाता है, किसको, SHO को. बट ही डिडंट बिलीव हिम and said that he could not bother to waste his time. Okay, so Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office, and they argued strongly that Mohan had beaten up in front of them, and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. तो मोहन अपने साथ लाए लोगों को वहाँ अंदर ऑफिस में बुलाता है. तो
उसके साथ के सारे लोग जो हैं वो उसकी सहमति में, उसके समर्थन में बात बताते हैं कि कैसे उसकी पिटाई की गई। हम विक्टिम हैं, हमने देखा था, ये सारी बातों को वो बताते हैं और ये बताते हैं कि ही हैज़ बिटन अप एंड इंजर्ड वेरी सीरियसली। They insisted that their case be registered. Finally, the officer agreed. तो अब so the people with Mohan insisted the SHO to register the file, register the case. Finally, the officer agreed. Okay, he asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. तो फाइनली क्या होता है कि SHO जो है, जो पुलिस इंचार्ज हैं, वो तैयार हो जाते हैं केस को फाइल करने के लिए और कहते हैं कि कल हम अपने कांस्टेबल को भेजेंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता लगाने के लिए। So now let us discuss what's the maintenance of land record, who does it. Okay, so you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields has been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns what land in the village? Let us find how this is done. So, we have seen that they argued. Not even this, or Mohan was also being beaten up. हैं तो a question arises in our mind कि क्या कोई आसान तरीका नहीं है जिससे कि इस टाइप की डिस्प्यूट्स को, इस टाइप के झगड़े को हम सेटल डाउन इजीली कर सकें, शांतिपूर्वक सेटल डाउन कर सकें. ठीक है, तो उसी के लिए है कि मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. A new word came here that patwari. Who the patwari means? What the patwari means? Who is patwari? Okay. So patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of village. Okay. So measuring land and keeping lands records is the main work of patwari. The patwari is known by different names in different states. Okay. In some villages, such officers are called lekpal, others कनुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर. ठीक है, तो ये जो पटवारी होते हैं इनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक लेखपाल, पटवारी, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा. ओके, सो वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेज. हर पटवारी जो होता है एक ग्रुप के, विलेज के ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन और अपडेट करता है. ओके, सो द मैप एंड द करिस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी. अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे एक सैम्पल, हाउ डज पटवारी कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स and how he updates it. Okay, so the patwari usually the ways of measuring has the patwari usually has ways of measuring agricultural fields. In some places a long chain is used. In above instance, the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurements of the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of fields has been changed. तो पटवारी अब क्या करेंगे कि पटवारी जो भी मोहन और रघु का लैंड रिकॉर्ड है उसको देखेंगे और मेज़र किया जाएगा लैंड्स को, दोनों के लैंड्स को. अगर लैंड्स एज इट इज़ है, जैसे मैप में दिया है वैसे दिया है, तब तो ठीक है, फिर डिस्प्यूट की, झगड़े की कोई बात नहीं, क्वेरल की कोई बात नहीं है. लेकिन अगर लैंड में कम ज़्यादा होता है, मैप से मैच नहीं करता है, तो इट वुड बी द सीरियस केस. ओके, सो द पटवारी इज also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information of the government about the crops grown in this area. Okay, so this is
done from the records that are kept, and this is why it is important for the patwari to regularly update these. Okay, so farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere. तो हमने देखा कि पटवारी के क्या क्या वर्क होते हैं. दे मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड्स, दे ही कीप्स द अपडेट्स of land records of villages. He is responsible for the group of villages. Okay, he measures the land. He can measure the land as it is given on map. Okay, there are so many work, so many responsibility, you can say. So we have discussed about the map. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कैसे रखते हैं. ठीक है, जैसे देखिए, नेम ऑफ ओनर एंड हस्बैंड्स नेम ऐसे हुआ. इट इज़ रिलेटेड टू सम अदर फार्मर. नो एरिया कल्टिवेटेड, कितना कल्टिवेटेड एरिया है, कितना क्रॉप ग्रोन है, कितना ये है. ठीक है, आप इसको पढ़िएगा. So earlier in our civics we have discussed about conventional symbols, and it is given over here. You can see the symbol for boundary, well, grassland, kacha road, pakka road and tree. Okay. So, and keeping the track, all this is the work of revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patwari's work. तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम तो भारी पटवारी का होता है, बट कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस वर्क इज supervised by revenue department of the government. Okay, so all states in India are divided into districts. If we come to know about, if we get to know कि अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल के जो काम होते हैं that comes under the central government. स्टेट लेवल की बात करें तो that comes under the state level. एंड डिस्ट्रिक्ट में यस, और डिस्ट्रिक्ट्स are subdivided into tahsil and taluka. Okay, so for managing matters relating to land, these districts are further subdivided. These subdivisions of district are known by different names such as tahsil, taluka, etc. At the head is the district collector, and under her are some revenue officers. तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिवाइड करते हैं तहसील या तालुका में, और इसमें क्या होता है, सबसे टॉप पे होते हैं हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके अंडर में रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं. ठीक है, दे हैव टू ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, और उन रेवेन्यू ऑफिसर्स को तहसीलदार भी बोलते हैं. ठीक है, दे हैव टू हियर disputes. They also supervise the work of patwaris and ensures the records of property kept by and land revenue is collected. तो ये रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या करते हैं, ये तहसीलदार क्या करते हैं, रेवेन्यू रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं और पटवारी को सुपरवाइज करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि आइदर द रेवेन्यू हैज़ बीन कलेक्टेड और नॉट. ओके, दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा. द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर द लैंड डिस्प्यूट्स आल्सो हर्ड. तो ये जो होते हैं लैंड रेवेन्यू, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ये इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, डिफरेंट फार्मर्स हैं, उनको इजीली लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, लैंड पेपर्स जो हैं, वो इनको इजीली अवेलेबल कराया जा सके. ना ही यही नहीं, स्टूडेंट्स को उनकी कास्ट सर्टिफिकेट दिलाने का भी काम ये करते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ पोएम रिलेटेड टू अ डॉटर्स विश. इट्स अ पोएम इन विच अ डॉटर wishes something, that is, father inherited our house from his father, and everyone says he will leave it to brother.
But what about me and my mother? To expect a share in my father's home, it is not very womanly. I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. तो यहाँ पे एक वो डॉटर ये विश करती है कि मेरे पापा को उनकी प्रॉपर्टी मिली उनके पापा से, और मेरे पापा उनकी प्रॉपर्टी दे देंगे मेरे भाई को, तो फिर हमारा मीन्स मेरी और मेरी मम्मी का हिस्सा कहाँ गया, मेरी माँ का हिस्सा कहाँ गया? तो मुझे ये वुमेन होने की सज़ा है, या क्या मुझे मेरे परिवार में हक नहीं मिलेगा? मैं अपना हक, मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ, लेकिन सिल्क और गोल्ड की फॉर्म में नहीं, या डाउरी दहेज प्रथा के साथ सिल्क और गोल्ड के फॉर्म में नहीं. इट शुड बी माई ओन एज कंपेयर टू माई ब्रदर. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी अमंग फैमिली रिलेटेड टू एनीथिंग. सो पहले क्या होता था कि पापा की प्रॉपर्टी उनके बेटे को दी जाती थी, उनकी प्रॉपर्टी उनके बेटे को दी जाती थी, मीन्स प्रॉपर्टी जो है वो बेटों में ही बढ़ती थी. ठीक है, लेकिन अब ये नया रूल आया है, उसी नए रूल के बारे में हम नए लॉ के बारे में यहाँ बात करेंगे. It's a law, Hindu Succession Amendment Act 2005. Okay, often when we think of farmers who own land, we think of men, women, and seen as people who work on the fields, but not as people who own agricultural land. जब हम फार्मर्स की बात करते हैं, जिनकी खुद की ज़मीन है, तो हम किसके बारे में, मैन, वुमेन और उनके बारे में बात करते हैं जो कि उस खेत में काम करते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं हम सोचते हैं किनके पास अपने एग्रीकल्चरल लैंड हैं, किनके पास नहीं. Till recently in some states, Hindu women did not get a share in the family agricultural land. तो कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ कि वुमेन को उनके अधिकार नहीं मिलते थे एग्रीकल्चरल लैंड में. तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन्स. उनके फादर की डेथ के बाद फादर की प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था उनके बेटों में. ठीक है, तो रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. तो जल्दी ही ये लॉ चेंज हुआ. इन दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territories of the country. तो अब ये नया जो लॉ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें ये चीज़ आई है, ये नया रूल आया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर और यू कैन से ऑफ फादर वुड बी इक्वली डिवाइडेड इनटू sons, daughters and their mothers. They can get equal shares of the property or land. ठीक है, और ये जो लॉ है ये हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरीज में फॉलो किया जाएगा. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली. तो ये जो लॉ है ना, इससे बहुत सारी औरतों को फ़ायदा होगा. अगर हम यहाँ सुधा का एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्रीकल्चरल फैमिली की ये सबसे बड़ी लड़की है. She is married and lives in a neighboring village. After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. तो ये है कि शादी के बाद भी ये जो सुधा है, ये इसकी शादी हो गई और ये पास के गांव में रहती है. तो इससे ये फ़ायदा है कि शादी के बाद भी सुधा आ सकती है और फार्मिंग वर्क में, खेती के काम में अपनी माँ की हेल्प कर सकती है. हर मदर हैज़ asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of the children in his record. तो उनकी माँ ने, सुधा की माँ ने पटवारी से बात की और ये बात की कि ट्रांसफ़र किया जाए नाम और एंटर किया जाए सुधा का भी नाम उस लैंड रिकॉर्ड्स के बाकी लोगों के साथ. Sudha's mother confidently organizes his farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो अब इससे क्या होता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है. अभी तक उसकी माँ उसके छोटे भाई और बहन के साथ काम करती थी, लेकिन अब जब ये नए लॉ के अकॉर्डिंग जब प्रॉपर्टी और के साथ, लैंड के साथ सुधा का नाम भी आ गया, तो सुधा की मदर के साथ साथ सुधा को भी फ़ायदा है कि अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है तो सुधा कैन टेक द हेल्प फ्रॉम हर शेयर ऑफ द लैंड. ओके,
So other public services survey, this chapter has looked at some of the administrative work of the government, especially for the rural areas. So in this chapter we have discussed about some tasks and some people who work on in rural areas. Okay, that comes under a rural administration. So read it. Okay. Students, this is the page I have given you the homework. It's an example is given over here, the in which you have to do, as the topic is given over each column, that what did the you notice about their work, area covered, what do they need to do in order to the use the facility, फेयर प्राइस शॉप रेशियो शॉप. तो यहाँ पे देखिए, द शॉप वॉज ओपन, 3 people केम, दे ऑल हैड येलो कार्ड्स. मीन्स आपको यहाँ पे वो लिखना है, जैसे हेल्थ सेंटर, आपके आसपास जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे क्या प्रायोरिटी है, क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में. और जैसे जैसे कॉलम वाइज दिया हुआ है आपको, यू हैव टू ट्राई टू फिल इट बाय योर ओन. ओके, and these are some questions you will do it in your copy. I have provided the PDF file in my description box, as well as personally to you all. Okay, so thank you, and that's all for today. Keep learning, keep revising, and stay at home, stay healthy, stay safe. Good day.